प्रॉपर्टी क्लिनिक ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ We are the doctor of property. अच्छा ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ये कोई नोएडा और या वो नहीं है कि रियल्टर पैसे लेके भाग गया। ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 0% ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ? ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਬਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਬਈ 2026, ਇਹ ਦੁਬਈ ਸ਼ੋਕੇਸ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧਰੂ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ सत श्रीकाल जी सब। मैं शक्ति अग्रवाल प्रॉपर्टी क्लिनिक से। मैं ध्रुव जाम प्रॉपर्टी क्लिनिक दुबई से। ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? एक्चुअली क्या है कि जैसे क्लिनिक में कोई पेशेंट जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ वी आर दी डॉक्टर ऑफ प्रॉपर्टी। ਅੱਛਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਬਜ਼ੇ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? साडे दुबई में कोई कब्जा नहीं होता। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਈ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। हाँ, वह सब ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा तो दुबई में आपको प्रॉपर्टी अगर बाय करना है, उसके बाद रेंट पे आउटलेट करना है, उसके अलावा आपको अगर ये चाहिए कि बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, आपको दुबई में प्रॉपर्टी रिसेल करना है, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ रेंट पे चढ़ाना है। हमारा मेन फोकस यही है प्रॉपर्टी क्लिनिक दुबई के लिए, किसी भी इन्वेस्टर का पैसा हम लोग ऐसी जगह ना लगवाए, एकदम सोच समझ के, जहाँ मेरे को खुद कॉन्फिडेंस हो कि हम यहाँ पैसा लगा सकते हैं, वहीं पे हम अपने इन्वेस्टर को कहते हैं कि वहाँ आपने। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਸੇਫੈਸਟ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇं? एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा चावला जी। जो दुबई है वहाँ ट्रांसपेरेंसी है। जब आप दुबई में पहले डील करते हैं तो फर्स्ट एडवांस पे ही आपको एक लेटर मिल जाता है, अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद आपको 20% का अमाउंट देते ही SPA साइन होता है। SPA हो गया एक तरीके से एग्रीमेंट। उसके बिहाफ पे आपको गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, आपको सारा पैसा रियल इस्टेट का जो एस्क्रू अकाउंट है उसमें डालना है। DLT उनका एक डिपार्टमेंट होता है, रजिस्ट्री टाइप। उसके बाद गवर्नमेंट से आपका टाई अप हो गया। बिल्डर भागे, बिल्डर नहीं करे, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇदारी वो सारी इंफॉर्मेशन आप दुबई गवर्नमेंट दी। हाँ, और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पोर्टल पे। वहाँ पे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे इस तरीके के ऐप्स हैं। आप डेली टू डेली अपना इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ये कोई नोएडा और या वो नहीं है कि रियल्टर पैसे लेके भाग गया, पब्लिक लड़ रही है। जैसे आपको देखा होगा वो कौन सा स्पेक्ट वो था, ਸਕੈਮ ਕਈ ਹੋਏ ਆ। स्कैम्स हुए हैं। तो वो सारी चीज़ हमारे यहाँ दुबई में कुछ नहीं होता। मैं तो वही चीज़ें ट्रांसपेरेंट है वो, जैसे अभी भैया ने बताया कि सारा अपडेट आता है। तो दुबई रेस्ट ऐप है उनका, गवर्नमेंट ऐप है। फॉर एग्जांपल एक क्या कहते हैं डेवलपर है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, प्रोजेक्ट ए, तो वहाँ डेली क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितना कंप्लीट हो गया, 1%, 2%, 3%, डेली का उस पर अपडेट आता है, जो आप जाके चेक कर सकते हो। आपको जाके साइट पे नहीं देखना, वो सारा उस पर डाटा अपलोड करते हैं। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? मेरा जो पुराना प्रोफेशन है, मैं ज्वेलर हूँ, तो जौहरी जो है वो चीज़ देख के बता देता है। जब मैंने पहला इन्वेस्टमेंट दुबई में करा तो मुझे वहाँ से ये फील आया कि हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब तक। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੀ? वो गलत इस कुछ भी तरीके नहीं से था। है कि वो कुछ नहीं है। अच्छा। वहाँ 2 जीरो लगाने का 1 जीरो 10 टाइम्स 10x करने का मौका है। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊँ चावला जी, आप पेमेंट तो देते ही देते हैं, वहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे है। आपका वहाँ पे जो एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, और सबसे बड़ा फायदा जो आज तक किसी को नहीं पता, आप इंडिया में प्रॉपर्टी लेते हैं ऑफ प्लान तो 1 साल मैक्सिमम टाइम मिलता है, पर अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं तो 5 साल में पेमेंट देनी है। अच्छा, और किस्तों में भी नहीं, 20% जैसे आपने आज दी, 10% के 3 स्लैब बने तो विद इन 4 ईयर्स 40-50% गया। 50% रहते रहते दो। अच्छा। आपको कब्जा भी मिल गया, आप रह भी रहे तो EMI के तौर पे आपको यानी कि किराए पे भी किराया आना शुरू हो जाएगा। आप पोस्ट हैंडओवर में किराए पे देते हैं तो उससे EMI, खुद रहते भी हैं तो रहने की जगह आपको EMI नहीं देनी, बिल्डर को ही किस्त देनी है। अच्छा। और आपको ब्याज पता है कितना है वहाँ? ओनली 4%। अच्छा, हाँ जी। यानी कि कमाई ज्यादा ब्याज कम। और रेंटल है 9 से 10% एवरेज, 8 तो मिनिमम है रेंटल। अगर आप कॉमर्शियल में जाते हैं तो 12%। फोर्थ वन, आप आज 100 रुपये लगाए, डॉलर कितना था? 5 साल पहले डॉलर का क्या रेट था? 74-75। वो आपका पैसा इंडिया में तो 100 का 100 ही है, वहां पे आपने इंडिया का 100 लगाया तो वो 5 साल बाद 110 रुपये, 108 रुपये, 115 रुपये तो वैसे ही हो जा रहा है। ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ जो भी इंटरेस्टेड इनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी चीज़ें जानकारी लेनी चाहिए। तो हमारे साथ जो आ रही है वो दुबई की सबसे बेस्ट रियल्टर कृपा प्रॉपर्टीज आ रही है, जिसने 5 साल में वो मुकाम हासिल करा है जो बड़े बड़े नहीं पाए। लास्ट मंथ ही उनकी 250 करोड़ इंडियन रुपीस की डील हुई है। वो कपिल शर्मा को कैफे के लिए अभी प्रोडक्ट बेच के आए। वो साजन रिजवान के बेस्ट टॉप सेलर हैं। डेमैक आइलैंड में उन्होंने इतना काम करा है। तो जो टॉप 10 रियल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके संग उनका कांटेक्ट है और वो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं। तो हम दोनों मिलके आपको सही रेट में सही चीज जो सजेस्ट भी करेंगे। वी आर डॉक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो सही रेट हो, सही इन्वेस्टमेंट हो, क्या टाइम है एग्जिट का। 4 साल बाद हमको लगता है कि एप्रिसिएशन आ गया तो जैसे म्यूचुअल फंड एडवाइजर होता है, वी आर एडवाइजर, हम आपको कॉल करेंगे 4 बजे ਤੁਹਾਡੀ प्रॉपर्टी दी ये रेट होया सी एनो इतने रेट विखरा दे, अब प्रॉफिट मिल रहा है, आप इसे आउट करो, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर चीज का एक ग्रोइंग टाइम होता है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਜੈਕਪੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਗੁੰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? नहीं पाजी की है ना, उत्थे गवर्नमेंट लाखा करोड़ा का काम करा रही है। दुनिया तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्थे लेके आ रही है। विन कसीनो इतना बड़ा ब्रांड लास वेगास दा उत्थे लेके आ रही है। तो जब गवर्नमेंट इतना पैसा लगाओगी तो इकोनॉमी तुसी समझो, इकोनॉमी एवं जा रही है तो प्रॉपर्टी तुसी डाउन क्यों जाएगी? अगर सारी इकोनॉमी ऐसे जा रही है। मैं इसमें एक अपना इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ऐसा है, जब आप वहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है वो कई गुना होने वाला है विंड कैसिनो की वजह से। वहाँ पे डेली एक फ्लाइट उतरती है फॉर एस्पेक्ट्स जो वहाँ रेजिडेंट बनना चाहते हैं। तो दोनों अगर हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो जब पब्लिक आएगी, डिमांड बढ़ेगी तो घर चाहिए, जॉब्स चाहिए, जॉब रहेंगी तो मटेरियल सप्लाई बढ़ेगी। वो पूरा एक सिस्टम है। सेकेंडली जो एम्परर है वो वहाँ का ओनर है। आप मेरी बिल्डिंग में आए, मैं जहाँ का भी बिल्डर हूँ, जैसे स्पेक्ट्रम मॉल मेरा है, तो मैं उसकी केयर करूंगा एज ए ओनर। हमारे देश में जो स्थिति है वो 5-5 साल का एक टेन्योर होता है। सबको पता है मुझे 5 साल रहना है, हट जाना है। तो उनकी सोच मैनेजर वाली है, उसकी सोच ओनर वाली है। उसने रेगिस्तान में वो करके दिखा दिया अजूबे जो हम सोच भी नहीं सकते। दुबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। ਅਗਵਾ ਸਭ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ,
ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਸ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬद्धਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, हाँ बिल्कुल जी, क्या है ना चावला जी, वहाँ पे गवर्नमेंट इनवाइटिंग है पूरी, यानी कि आप बढ़ावा दे रही है, आपने आप बढ़ावा दे रही है कि हम आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, आप आओ हमारे यहाँ अच्छी लाइफस्टाइल जियो, जो आप पैसा दे रहे हो उसका आपको बेनिफिट, जैसे यहाँ पे आप टैक्स दे रहे हो, वहाँ पे पहले तो 0 टैक्स, अच्छा टैक्स फ्री है पूरा, 0 टैक्स है। आप अगर जो भी अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है तो आप 100 रुपये घर लेके जाते हो। तो सरकार आपके लिए मेहनत कर रही है कि आपको यहाँ बुलाए दुबई में, जितना भी अच्छा क्रिएटिव टैलेंट है उसको इनवाइट कर रही है कि आप आओ, हम आपको गोल्डन वीजा। यानी कि ये कह सकते हैं कि अच्छा अब मैं अगर जे पिछला 2-3 साल ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ पाजी की है ना डिफरेंट एप्रिसिएशन। अगर आप एक लमसम एक एवरेज अगर आप एवरेज पाजी 10 to 12% एप्रिसिएशन हर साल ਤੁਹਾਡੀ प्रॉपर्टी से आएगा। एक डैमेग लगून आइलैंड है, वहाँ पे 1.6 मिलियन में 3.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। करंटली वहाँ 2.9 मिलियन का रेट है। रेंटल वहाँ 10% है, टैक्स 0 है। मैं आपको ROI शीट करूँगा, अगर कोई मुझसे इंटरेस्ट है तो इंडिया में अगर आप हर साल 1 करोड़ रुपया कमाते हैं एज ए कंपनी, आपकी अपनी फर्म है, आप उस पे अंदर कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो 4 करोड़ रुपए कमाने के बाद आपका रुपया 306 हो जाएगा आफ्टर टैक्स डिडक्शन, आफ्टर मैनी ऑफ थिंग्स। और वही रुपया अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करते हैं 1 करोड़, तो 636 रुपए मैं करके दूंगा। क्या बात, 306 और 636 2x। क्यों एनी डिफरेंस? चार चीजें हैं चावला जी। पहला तो हो गया डिवैल्यूएशन। उसमें क्या होता है कि जैसे आज 100 रुपए का हम जैसे डॉलर है, आज अगर 89 रुपीज का डॉलर है तो वो महंगा होता जा रहा है, और जो वहाँ की करेंसी है दिरहम, वो डॉलर के साथ पैक्ड है। तो अगर आज आपके 100 रुपए आपने लगाए तो वो 104 तो डॉलर के साथ ही हो गए, ठीक है ना। आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो 100 रुपए की, वो 100 के 100 ही मिलने हैं आपको जब आप बेचोगे, लेकिन वो जब उस समय उसकी कीमत होगी 100 की 104, तो वो ऑटोमेटिक ऐड होगी आपको। क्या बात, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ और जाम साहब जी दा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आएंगे, कमिंग सून। बिल्कुल जी, ज़्यादा ज़्यादा दोस्त साहब तुसी कुछ कहना चाहो? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा चावला जी का कि हमें अपने मुकाम पे आपने एक मौका दिया, हमें अपनी बात रखने के लिए। प्रॉपर्टी क्लिनिक दुबई को आपने भरोसा दिया, और मैं सबको दोबारा इनवाइट करना चाहूँगा कि हम लोग 31 जनवरी और 1 फरवरी मुरादाबाद में हॉलीडे एजेंसी में प्रॉपर्टी एक्सपो लेके आ रहे हैं कृपा प्रॉपर्टीज के साथ, जो कि ओन करती हैं मनप्रीत जी। तो वहाँ पे आपको कोई भी सवाल हो दुबई से रिलेटेड, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, किसके साथ इन्वेस्ट करना है, किस समय इन्वेस्ट करना है, वो सारी आपके डाउट्स वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप लोग सारे इन्वाइटेड हैं, डू चेक इट आउट। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।